Good evening. Today I will discuss about magnetic effect of electric current. So, as you all know, what is this chapter names is, whenever current flows through a circuit, there is a magnetic field around it. So, the motive of this chapter is to quick revision of what we have read before in this chapter. So, let us first discuss about what is a magnet. So magnet is a kind of a natural substance found in the earth, which is having some property to attract small iron particles, right? You can say some, sir, ferromagnetic substances, right? And you say, sir, what is the application of magnet? You can say toys in use. We use magnets. We use magnets and stickers, magnetic stickers, which you just put on the refrigerators, almirahs, and most probably in medicine, what is the use of magnet is MRI, in magnetic resonance imaging. Use magnets. So there is a vast applications of magnets. Uh, you know, all around us there is some magnet. Why? In electron, proton, and neutron, they all behaves as a magnet also. So in every atom, since every matter is made up of molecule, which in turn is made up of atom, and atom has electron, proton, and neutron. So all electron, proton, and neutron are made up of, they itself behave as a magnet. So what we are going to study in this chapter is, let us first discuss the Oersted experiment, right? So what was Oersted doing? He took a straight wire, current carrying wire, and accidentally he found that when a compass needle is placed uh, near to the current carrying wire, he found that there was some deflection in the compass needle, and there was some sudden deflection. सो ही टोल्ड कि भाई ऐसा है कि मैग्नेटिक करंट फ्लो करने से क्या हुआ कि इस कंपास नेट में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. सॉरी, बार मैग्नेटिक, देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर, राइट, in the form of circular loops, which he later got to know by doing some kinds of experiment. We will study later. So uh, let us also discuss about that what is a compass, magnetic compass. Actually magnetic compass क्या है, एक ऐसा सेटअप है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सर एक एनक्लोज़र है, और उस एनक्लोज़र में एक हमारे पास ना एक मैग्नेटिक निडल है. इट्स ए स्मॉल, वेरी स्मॉल मैग्नेट, एंड यू कैन से इट वॉज फाउंड कि अगर ये जो मैग्नेटिक निडल है ना, ये नॉर्मली इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, राइट. सो इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर आप इसके पास रखते हैं तो देर विल बी सम सडन डिफ्लेक्शन इन द compass needle, so you say there is some magnetic field around the current carrying wire, right? You will say, sir, tell me what are the kinds of magnet. You will say, sir, there are two kinds of magnet. One is the permanent magnet, and one is the electromagnet. So electromagnet, they are some the magnets which are formed when you pass the current through a wire. The wire will behave as a magnet, but as soon you remove the current or stop the current flowing through it, it does not behave as a bar magnet. It does not behave as a magnet, right? So that is what an electromagnet is. So how we make the electromagnet is, we just have a turns of coppers, and we just make a coil. What is a coil? Coil is nothing but a circular turns of a copper wire or any metal conductor. So this makes up a coil, and you pass the current through this wire. This coil will behave as a magnet, and we can draw some magnetic field around it, right? What is permanent magnet? The magnet which is permanently magnetized, means an object which is permanently magnetized, there is no need to pass current through it to make it behave as a bar magnet. What are the examples? How you temporary magnet, and how you can make permanent and temporary magnets. There are some kinds of material. For example, if there are soft, you can say soft iron is used to make up a, what kind of material? You can say it is used to make a electromagnet, right? As soon you pass the current through it, it will behave as a magnet, and as you take out the current, so it will not behave as a magnet. Permanent magnets are made up of hard magnetic materials, right? One of the best example is alnico. They are generally made up of alloys. They are generally made up of alloys. So alnico is also one of the alloy
एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। एलनिको इज मेड अप ऑफ, तो आपको बस यही याद रखा है कि एलनिको से मिलके बनी होती है। तो बेटा परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आप कई बार पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे। पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनके बारे में डिफरेंस लिखना है, तो आप सिंपल सा कहोगे कि सर देखिए परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, एक बार बन गई तो उसका हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम जितना भी वेबर पर मीटर स्क्वायर का उससे मैग्नेटिक फ्लक्स आना है, फील्ड आना है, उतना ही आएगा फाइनली। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है कि अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कम कर देंगे तो कम भी हो जाएगा। हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को वेरिएबल कर सकते हैं। डिफरेंसेस आते हैं बेटा 4-5 लिखने के लिए। आप ये कहेंगे सर परमानेंट मैग्नेट में एक बार अगर हमने नॉर्थ साउथ पोलैरिटी फिक्स कर दी तो वो हमेशा हमेशा के लिए फिक्स रहेगी, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाती है, राइट। और आप क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि सर परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो फिक्स्ड रहती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम बढ़ा घटा सकते हैं अपनी नीड के अनुसार। बस इतना ही लिखना हमारे लिए एसेंशियल था। एग्जांपल लिख सकते हैं, वो सॉफ्ट आयरन मटेरियल से बनी होती है और हमारी जो परमानेंट मैग्नेट है वो हार्ड आयरन से, हार्ड मटेरियल से मिलके बनी होती है। सो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, एलनिको इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। अच्छा बेटा इसमें ना कुछ मान लीजिए पेपर में आपसे प्रॉपर्टीज़ लिखने के लिए आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये क्विक रिवीजन है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस रिवीजन को कराने के लिए। और मैं आज की वीडियो आप लोग करने के बाद आपको कल इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं मोटर पढ़ाऊँगा पूरा, ठीक है। उसको बड़े पेशेंस के साथ कॉन्शियसली इसको समझिएगा। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी होती है, तो आप कहोगे सर एक तो यू शेप्ड में होती है, उसको हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं, सर्कुलर शेप हो सकती है, डिस्क शेप हो सकती है, बार मैग्नेट होती है, राइट, रॉड शेप कहते हैं उसको। तो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द मैग्नेट। प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, और यू कैन से अ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट, राइट। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि सर एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सस्पेंडेड मैग्नेट MAG मैग्नेट रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, रेस्ट्स इन नॉर्थ साउथ। सेकेंड प्रॉपर्टी आप ये कह सकते हैं सर अगर एक मैग्नेट को हम कितने भी पीसेज में ब्रेक करते चले जाएं तो वो जो हर एक इंडिविजुअल पीसेस होंगे वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं कि आप नॉर्थ साउथ पोल को अलग अलग कर लेंगे। सो इफ देयर इज अ नॉर्थ पोल देयर विल बी अ साउथ पोल along with it. It does not so that you cannot take out one north pole separately. It is not possible. If there is a north pole there has to be some south pole associated with it. Okay, now we should come to the next properties. For example, you can say sir the magnetic field lines starts from the north pole outside the bar magnet and comes inside the south pole at the other end, and inside the magnet they keep continue from south to north, from south to north. So what is the direction of magnetic field, they goes from north and meets at the south pole. No two magnetic the next property is, fourth property is no two magnetic field lines क्रॉसेज ईच अदर। कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे मान लीजिए मैं इसको ये कह देता हूँ कि ये लाइन ऐसे जाके और फिर इसको पहली वाली को क्रॉस करती हुई फिर ऐसे चली गई, ऐसा गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि आप फिफ्थ प्रॉपर्टी में समझाएंगे कि किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यू जस्ट टेक अ कंपास निडल। आपने मैग्नेटिक कंपास लिया और मैग्नेटिक कंपास का जो पॉइंटर था उस पॉइंटर का जो यू कैन से इट इज़ पॉइंटिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट। एक्चुअली यू नो द नेक्स्ट पॉइंट कैन बी द field strength at the poles is stronger and the field strength at the outside the poles, or you can say at the middle of the bar magnet is weaker. तो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नज़दीक होंगी, क्लोजर होंगी, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर एट दिस पॉइंट, राइट। एट एवरी पॉइंट अराउंड द बार मैग्नेट देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड whose value can be, you can say, we can find by what amount of force it is acting on the compass needle. If it is acting a stronger force on the compass needle, then you can say sir the magnetic field strength there at that point is greater, and if it does not deviate the compass needle much, then you can say the magnetic field strength is weaker at that point, right? So you can say a compass needle can give us the
Direction of magnetic field, how? The direction from its south to north means let us say it is its tail and it is its pointer. So the direction from its tail to pointer will give you the direction of magnetic field at that point. For example, if you want to find out the magnetic field at this point, you just put the compass needle, so the compass needle will show like this. So from its tail to its head means this is the direction of magnetic field at this point. So if at a point you want to find out the direction of magnetic field, you just put a compass needle, right? Or you can say a line which is parallel to the magnetic needle, compass needle, at that point is the direction of magnetic field at one point, right? So in this way a compass needle can do much of the work for us. Now next we should go ahead with Fleming's लेफ्ट हैंड रूल और ओवरस्टेट के बारे में तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि अगर जैसे कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके पास अगर हम कंपास नीडल रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। डिफ्लेक्शन इसलिए होगा क्योंकि इसने भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया और कंपास नीडल का भी खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड था, और जो जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स दे बोथ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इज सम फोर्स, राइट। सो इसके बारे में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, उनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कोई कार्डबोर्ड है और मान लीजिए जैसे कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में आपने क्या किया, मान लीजिए आई शुड मेक द स्क्रीन बिगर, और आपने क्या किया, मान लीजिए अगर इसमें कोई एक पास करा लिया और इस वायर में से क्या हो रहा है कि अब आपने क्या किया, करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो आपने क्या किया, आयरन के कुछ स्प्रिंकल्स लिए और इसके ऊपर छिड़क दिए, तो क्या होगा कि इसके ऊपर सर्कुलर फॉर्म में आयरन के स्प्रिंकल्स अरेंज हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ सर्कुलर पैटर्न में। तो ऐसे कई टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए गए। मान लीजिए अगर इसमें दूसरा एक्सपेरिमेंट इस तरीके से किया गया कि एक मैंने होल यहाँ किया, एक होल मैंने यहाँ किया और एक वायर सर्कुलर फॉर्म में ले करके नीचे से बैटरी से कनेक्ट कर दिया उसको, मतलब एक ऊपर से वायर लिया सर्कुलर फॉर्म में और नीचे से निकाल के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और फिर आपने क्या किया, फिर आयरन के स्प्रिंकल्स इसके ऊपर डाल के देखे, तो ये देखा कि भाई अब भी सर्कुलर पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। और अगर मैं उसको प्लॉट करता हूँ तो उसका प्लॉटिंग कैसा होगा, नाउ लेट अस सी द प्लॉट, राइट। सो आई एम वेरी मच यू नो कैन regretful for the sound background noise, right। so भाई कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट था ये आपका, यहाँ एक होल किया था, यहाँ एक होल किया था, ऐसे वायर को हमने पास कराया था और अंदर से इस वायर को यहाँ से बैटरी के द्वारा हमने एक रियोस्टेट लगा के करंट सप्लाई दी थी। अब यहाँ ये देखा गया कि भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अरेंज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से अरेंज हो गई, राइट। सेंटर में स्ट्रेट होगी, सेंटर में स्ट्रेट होगी। अब क्योंकि यहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन अपोजिट, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डाउनवर्ड, इट इज़ गोइंग इनसाइड, इट इज़ कमिंग आउट। अच्छा बेटा, डायरेक्शन अगर करंट कहीं से आता है तो उसको ना डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर करंट आपकी स्क्रीन में से बाहर आ रहा है तो आप डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, और करंट अगर इस स्क्रीन के अंदर जा रहा है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे। यही आपको नोटेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी अपनाना है या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आपको अपनाना है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको पता लगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरीके से होता है। अच्छा, अब बात करते हैं मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो ये क्या था कि बेसिकली अगर किसी करंट कैरिंग वायर में मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो व्हाट वी विल डू, बेटा ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो यू कैन जस्ट राइट कि इफ यू होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब इंडिकेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स आर कर्लिंग will give you the direction of the magnetic field. For example, if this is the direction of the current, for example this is my wire, the current is flowing through in this wire like this, and you hold it such that the thumb is indicating in the direction of current, then the direction in which the fingers are curling, and if I see it from the top, then I found that they are moving in the anticlockwise direction. So this is the direction of magnetic field, and if the current is flowing in this way, then you can hold this wire such that, and just curl your fingers, you will find that these fingers are curling in the clockwise direction. So this is the direction of magnetic field. In this way मैक्सवेल ने ये राइट हैंड थंब रूल को समझाया और कॉर्क स्क्रू रूल भी इसका नाम दिया। कॉर्क स्क्रू रूल क्यों नाम दिया इसका, इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास क्या है, जो कॉर्क ड्राइवर होते थे ना, जैसे किसी कांच की बोतल में से कॉर्क को निकालना होता था, पहले कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में कॉर्क लगी हुई आती थी, तो उसको निकालने के लिए ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए कि ये हैंडल है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से एक आयरन का नेल है, और अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये क्या करेगा कि ये जैसे मान लीजिए ये एक हैंडल है,
सो और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो इसके नीचे एक नेल लगा हुआ है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से वो नेल अंदर की तरफ जाएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि द डायरेक्शन इन विच वी आर रोटेटिंग दिस हैंडल विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो हमारा पॉइंटर है ये अगर नीचे की तरफ जाता है तो वी विल अंडरस्टैंड कि दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। सो इस तरीके से हमने मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू रूल, या इसका दूसरा नाम था राइट हैंड थंब